Hello friends, welcome to the new e-class. I hope you all are doing good. Friends, as you all know that in commerce stream you have three major foundational pillars. Herein I am referring to your three major subjects that are accountancy, business studies and economics. So from this video, I'll be starting off with the brand new subject of class 11th, that is business studies. Majorly, there are many authors available in the market for business studies book, like Poonam Gandhi is there, T.R. Jain is there, but I will suggest you to take up the NCERT book because first of all, this book is referred by the CBSE board. Secondly, the basic conceptual knowledge can be understood from that book easily. Third thing, the language given in the book is again quite easy for you. So I would suggest you to take that book and refer that book only with my videos. Because जितना भी मेरा content रहेगा videos का for business studies, I will be referring to NCERT book only. The major motive of my videos would be to provide you more of the content in the shorter duration of time. Also, जितने भी मेरे videos आएंगे वो basically parts में आएंगे because some of the chapters are quite lengthy in business studies, so I have decided to bring out the content in the parts, or you can say in subtopics. So make sure you watch all the parts of a video so that you can complete up the whole chapter. कोई ऐसा सब टॉपिक ना हो जो आपका बीच में छूट जाए. डेफिनेटली आई विल नंबर अप द पार्ट्स ऑफ द वीडियो सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट how many parts would be there for that particular chapter. So please like the video and do share it with your friends as well so that they can also clarify their concepts of business studies easily. And subscribe to the channel so that you can watch the upcoming videos on time. So let's quickly jump into the video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. एज द बुक नेम इटसेल्फ सेज, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बिजनेस स्टडीज बुक का आपका नेम है. सो बिजनेस के बारे में थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस होता क्या है, क्या नेचर रहता है बिजनेस का, कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, कितने टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं, कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं आपके पास जहाँ से आप बिजनेस को सेटअप करने के लिए फंड्स रेज कर सकते हो. तो इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में ही हम बिजनेस स्टडीज़ में बात करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. एंड सबसे पहले हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है. सी, बिजनेस बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो एक पर्सन परफॉर्म करता है रेगुलर बेसिस पे. And definitely if that person is performing on regular basis, that means they are doing for earning the money. Fine. So let's see what does the definition says. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities like purchase, production or sale of goods and services with a view to earning प्रॉफिट्स. कुछ टर्म्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस. सी, बिजनेस एक तरह का ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे या बिजनेस में जब भी हम इन्वॉल्व रहते हैं तो हम रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में. वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? परचेज, प्रोडक्शन, सेल. किसकी करोगे आप? रेगुलरली एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म तो करोगे, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल. डेफिनेटली यू विल बी डूइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. या तो आप गुड्स में रेगुलरली डील करोगे या फिर आप सर्विसेज में. जैसे अगर हम बात करें, सपोज आई हैव अ बिजनेस ऑफ स्टेशनरी आइटम्स वेयर इन आई एम डीलिंग विद various kinds of items like pens, pencils, stationeries, clutch pencils, color pens, like so many things I'm dealing with, but only with stationery items. Fine. So उन stationery items को अगर
मैं रेगुलरली डील कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ या फिर परचेज कर रही हूँ, फाइन, या फिर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव अ बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. दिस वॉज एन एग्जाम्पल फॉर गुड्स. टॉकिंग अबाउट कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस इन द फॉर्म ऑफ, वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रीशियंस, we talk of plumbers. They are providing you some kind of facility by being at home, fine, some kind of repairing being done by the people, fine, this is also termed as business for them. So आप business goods का भी कर सकते हो, services का भी कर सकते हो, and ultimately आपका main aim क्या रहेगा? Definitely to earn profits. आप किस लिए business setup कर रहे हो? To earn profits. So what is a business basically? एक तरह का occupation in which people are regularly engaged in the activities. कौन कौन सी activities हो सकती हैं वो? Sale, purchase और exchange of goods and services, plus major motive क्या रहेगा, main aim क्या रहेगा business setup करने का? To earn profits. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कह सकते हो व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. सो लेट्स सी. फर्स्ट आपका आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? विच इज बेसिकली परफॉर्म्ड टू अर्न द लाइवलीहुड, फाइन. एंड टॉकिंग अबाउट ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो ऐसी एक्टिविटी है विच इज डन आउट ऑफ, और यू कैन से विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी और अफेक्शन. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें, इफ आई एम अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, fine, and in return I am getting the salary, or if I am an employee working in a company, working in a multinational company, you can say, in return I am getting some kind of salary again. So talking about on the other hand, two more examples if I give you. If mother is cooking the food for the family, fine, herein again if you can differentiate between the two examples, कि अगर एक एम्प्लॉय MNC में वर्क कर रहा है, फाइन, डेफिनेटली ही और शी वुड बी गेटिंग इन रिटर्न सम काइंड ऑफ सैलरी, फाइन. सो हेयर दैट विल बी टर्म्ड एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज दैट काइंड ऑफ जॉब डन बाय द एम्प्लॉय इज डन ड्यू टू अर्निंग ऑफ द लाइवलीहुड. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल में, व्हाट आई गेव, दैट इफ अ मदर इज कुकिंग द फूड फॉर द फैमिली, is she doing out of love, or she is expecting something in return, that she will be getting some amount of money in return for cooking? Definitely no. So such kind of examples can be taken up as your non-economic activity that is performed out of love, affection or sympathy. Talking about on the other hand of the economic activity, it is performed due to earning of the livelihood. The next characteristics of business activity is production of goods and services. जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी रहेगी वो आपकी रिलेट करेगी प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन एक्टिविटी से. एज in the definition itself I told there are various kinds of activities involved: purchase, production and sale. So जो production है आपकी वो एक तरह से again it is a feature for business activity, क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे दैट मीन्स यू विल बी प्रोड्यूसिंग समथिंग और यू विल बी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, एंड दैट प्रोडक्शन कैन बी ईदर ऑफ कंज्यूमर गुड्स और ऑफ कैपिटल गुड्स. नाउ व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट आर कैपिटल गुड्स? सी, कंज्यूमर गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स, कुकिंग ऑयल और पेन्स, pencils, fine. So such kinds of examples can be related to your consumer goods. That means they are for the ultimate consumption by the consumers. On the other hand, capital goods आपके कौन से goods हैं जो basically आप business में use करते हो. That means आप उसके through अपनी आगे further production करते हो goods की. Fine. And like you can take up an example like furniture is there,
और यू कैन टेक अप एज मशीनरीज आर देयर, मशीन्स का यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो सच काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी टेकन अप एज योर कैपिटल गुड्स. सो दैट मीन्स प्रोडक्शन कैन बी ऑफ ईदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. तो नेक्स्ट आपका फीचर आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसमें आपको एक्सचेंज करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. सो अगर हम बात करें, हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वी आर प्रोड्यूसिंग दैट फॉर पर्सनल कंजम्पशन. से फॉर पर्सनल कंजम्पशन हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं कर सकते. सो वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेल पर्पस के लिए कर रहे हैं, सो दैट विल बी टर्म्ड एज योर बिजनेस एक्टिविटी. सो ये एक तरह से आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो. द सेम एग्जाम्पल आई कैन रिपीट, दैट इज cooking food by the mother in the family. So she is cooking for the family. It is not her business to do, although the mothers cook regularly the food for the family. It is not a kind of business activity for her. It is just an activity for, you can say, for personal consumption. So you cannot term it as business activity. So some kind of directly or indirectly ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर विद इन द बिजनेस. एंड जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं सेल पर्पज के लिए, दैट इज डेफिनेटली टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. नेक्स्ट आपका आता है डीलिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस. डेफिनेशन में भी मैंने आपको फोकस किया था दैट वॉट एवर द पीपल डू दे आर रेगुलरली एंगेज्ड. तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वो एक वन टाइम टास्क नहीं है. दैट इज नॉट अ सिंगल टास्क टू बी परफॉर्म्ड और वन टाइम टास्क टू बी परफॉर्म्ड. वो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अगेन आई टेक अप माई एग्जाम्पल दैट इफ आई हैव अ बिजनेस ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, फाइन. सो स्टेशनरी आइटम्स का मेरा बिजनेस है एंड आई एम रेगुलरली परचेजिंग द स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स और नोटबुक्स और क्रेयॉन्स, कलर्स. लाइक अगर मैं इन आइटम्स को रेगुलरली परचेज कर रही हूँ एंड रेगुलरली सेल कर रही हूँ, सो दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा वो बिजनेस है. एंड इफ आई से जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग आई एम गोइंग टू बाय वन मार्कर और मैक्सिमम ऑफ द 2 मार्कर्स सपोज, फाइन. सो वो मेरे लिए कंसिडर्ड नहीं होगा दैट आई हैव अ बिजनेस और इट्स माई बिजनेस. तो बिजनेस आपका तभी कंसिडर्ड होगा इफ यू आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज रेगुलरली, और यू कैन से इफ यू आर डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर यू कैन से ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज प्रॉफिट अर्निंग. डेफिनेटली अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो सबसे पहला हमारा मेजर मोटिव क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट कैन बी टर्म्ड एज the difference between as your whatever you are buying at a particular cost and the price at which you are selling up the product. Suppose I am buying this marker for reselling purpose, fine, for reselling purpose, and I am buying this marker, per marker I am paying suppose rupee 5, fine, from the manufacturer if I am buying at the rupees of 5, one marker. And if the same marker I am selling it to the ultimate consumer at rupee 10, definitely the difference between both of them would be the profit margin for my business. So ये profit earning activity है, या फिर आप कह सकते हो जो भी business activity हम perform करते हैं या जब भी हम business setup करते हैं, the major main or the motive of setting up a business is to earn profit. Kind of a reward you get in return of the activities you perform. Next आपका आता है uncertainty of return. Next feature में आपको basically क्या कह रहा है, uncertainty. Uncertainty is what here? That mishappening of an event, or we never know what may happen in future. So such kind of returns if we talk about कि business activity जब हम perform करते हैं, business हम setup करते हैं, हमें नहीं पता रिटर्न क्या आने वाला है फ्यूचर में.
डू वी नो कि अगर आज हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सपोज आई एम सेटिंग अप माई बिजनेस ऑफ स्टेशनरी आइटम्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, क्या मुझे पता है कि येस आई विल बी अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, or after a month, or after 2 months, or after 3 months? So we may never know what may happen or what the business may earn. The business may earn profits or it may suffer losses as well. So बहुत सी चीज़ें होती है बिजनेस में, और जब भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसमें बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं कि क्या फ्यूचर में होगा, यू नेवर नो। क्या आपका प्रोडक्ट एक्सेल करेगा मार्केट में इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, या फिर द प्रोडक्ट विल नॉट परफॉर्म गुड इन द मार्केट। Even uncertainties can be in the form of amount of money to be earned, that I told that अगर हम बात करते हैं कि uncertainty of return है, तो it can be in the form of profits as well as losses that can be incurred by the company. No matter how much efforts you have put in the business, you never know एक given time period में आप कितना amount of money earn करने वाले हो। So last characteristic की अब हम बात करते हैं, that is element of risk. Element of risk here means what now? हम रेगुलरली सुनते हैं फ्रॉम एवरीवन कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इट इज़ रेफरिंग टू द एक्सपोजर ऑफ लॉस, और यू कैन से इट कैन बी रिलेटेड टू अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले कि कस्टमर्स की डिमांड में शिफ्ट होना, एंड वो डिमांड में जो शिफ्ट होगा वो बेसिकली टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए मे बी, और maybe you can take up the example of any kind of natural calamity that may happen. Fine, that is again uncertain, we may never know what may happen in future. Fine, koi some kind of theft can be done by the employees or by some outsiders even, or you can take up the example of some kind of dishonesty being done by the employees within the organization or within the business. सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं या बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक तरह से आपके एलिमेंट ऑफ रिस्क हैं बिजनेस के लिए। तो इन सभी रिस्क्स को भी बियर करना पड़ता है एक बिजनेस को सेटअप करने में, और यू कैन से बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्लस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। होपिंग दैट आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया प्लीज़ डू गिव इट अ बिग थम्स अप सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँ, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can watch the subsequent sessions timely. Also, please don't forget to press the bell icon so that you are notified whenever I upload a new video. Thanks for watching the video. Bye bye.